नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए अब नजर डालते हैं आज की मुख्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश की संसद में 3 दिसंबर से शुरू होने जा रहे नेशनल यूथ पार्लियामेंट सम्मेलन में देश भर से 7 राज्यों के नौजवान विद्यार्थी देश को अलग अलग विषयों पर संबोधित करेंगे। वहीं डेरा बाबा नानक के सीमावर्ती और ऐतिहासिक कस्बे की छात्रा योग्यता को विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। योग्यता को इस उपलब्धि पर खुद पर बहुत गर्व है और उसने इसका पूरा श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद को दिया है। योग्यता की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। अपनी खुशी का इजहार करते हुए योग्यता ने बताया कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको एक दिन यह उपलब्धि मिलेगी। हाँ जी, सब तो पहला तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਗਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਯੂਥ ਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ, ਐਨਐਸਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀਗਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਊਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੇਨਲੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੜੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਡਰੋ ਨਾ, ਰੁਕੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ मैं अपने पंजाब ਨੂੰ अपने डेरा बाबा नानक लिए कुछ ना कुछ कर सका। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। साथ ही स्मृति ईरानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए उनसे बात भी की और कहा, निवेश में हो रही किसी भी तरीके की दिक्कत को हो
तो जिला प्रशासन के साथ साथ हमसे भी बात कर सकते हैं। जो अमेठी अभी तक वीरान थी, अमेठी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने 203 गन फैक्ट्री की शुरुआत की थी। आश्वस्त करना चाहती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, वन विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से और जनता के सहयोग की दृष्टि से अमेठी आतुरता से इंतजार करता है नए नए अनुभवों का, नए नए अवसरों का। जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार के सहयोग से, मोदी सरकार के मार्गदर्शन में हमारे जिला के नौजवानों को पूर्ण रूप से स्किल करने का भी लक्ष्य प्राप्त किया है और नए लक्ष्यों को भी जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इससे इन्वेस्टर से कहना चाहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में अवैध रूप से चल रहे एक एकता नर्सिंग होम की कुछ लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके बाद अपर सीएमओ व बबेरू सीएचसी अधीक्षक के द्वारा उक्त नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें नर्सिंग होम पर ना तो कोई डॉक्टर पाया गया और ना ही नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन था। नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई कर सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में आगामी फरवरी 2023 में विश्व विख्यात हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर मंगलवार को एसडीएम कुमकुम जोशी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में 3 से 5 फरवरी 2023 तक नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिताओं तथा 5 से 7 फरवरी तक फेडरेशन ऑफ स्कीइंग फीस प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है। ओली में जीएमवीएन के सभागार में हुई इस बैठक में ओली मुख्य सड़क से जीएमवीएन पार्किंग स्थल तक 600 मीटर सड़क का सुधारीकरण व डामरीकरण बीआरओ द्वारा कराने व इसका भुगतान पर्यटन विभाग से कराने पर सहमति बनी। आए दिन अवैध नर्सिंग होम में गलत इलाज से मरीजों की मौतों की खबर आती रहती है, फिर भी स्वास्थ्य महकमा कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना अंतर्गत एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा है। इसमें एक महिला मरीज को पेट में दर्द होने पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बिना कोई जांच के लिए उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन बाद में महिला की हालत बिगड़ने के बाद जब उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो जांच में यह बात सामने आई कि उसका बच्चेदानी और ओवरी ही काट दिया गया। इस संबंध में पीड़ित महिला सविता देवी के द्वारा पुलिस में शिकायत की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थक कर महिला समस्तीपुर कोर्ट में फरियाद की। तब कोर्ट के आदेश पर अब कल्याणपुर थाना में आजाद हॉस्पिटल के आरोपी डॉक्टर मोहम्मद आजाद पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताइए तो क्या हुआ था आपको जो यहाँ दिखाने आए? हमको बचदानी में दर्द हुआ है ना, वो अथी नहीं ट्यूमर नहीं कहते हैं, उसी में दर्द हुआ बहुत जोर, 10 दिन से हुआ। तब लेकर यहाँ आए तो कब आए? हो गया 7 दिन आना। किसका क्लिनिक है ये? हमको नहीं जानते हैं, बेटिए से जानेगा। यहाँ हुए तो क्या इलाज हुआ है? ऑपरेशन किया है, दवाई सुइया चलते। कौन किया है ऑपरेशन? इसी में डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर आजाद? हाँ। वही किए ऑपरेशन? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। मध्य प्रदेश के गंदवानी विधानसभा कांग्रेसी विधायक उमंग सिगार पर उनकी पत्नी के द्वारा संगीन आरोप लगाने के पश्चात पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया, जिसको लेकर सिंगार की मुश्किलें अब और भी बढ़ने लगी हैं। विधायक ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। इस वीडियो में उन्होंने एक तरफ आत्महत्या का जिक्र किया है तो दूसरी ओर जनता की सेवा करने का भी निर्णय लिया है। अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के कानून पर भी भरोसा जताया है। उमंग सिगार के बारे में यह भी बताया गया है कि उनकी 1 से भी अधिक पत्नियां हैं। उमंग सिगार एक कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और उनके भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, यह जानकारी हमको धार के वरिष्ठ वकील नीलेश शर्मा ने दी है। एडवोकेट शर्मा का कहना है कि इन मुकदमों को लगने से
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को देखें तो ना सिंगार की विधाई की जाएगी और ना ही उन्हें चुनाव लड़ने में कोई बाधा आएगी। एक प्रश्न के उत्तर में शर्मा ने जवाब दिया कि विधायक निर्वाचन का फॉर्म भरने के साथ जो शपथ पत्र दिया जाता है उनमें सही जानकारी अगर नहीं दी जाती और आप उसको कोई चैलेंज करता है तो उस पर कार्रवाई निर्वाचन आयोग कर सकता है। आज एक बड़ी शख्सियत का भी जन्म दिवस है, सुभाष चंद्र जी बोस। अच्छा है, तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई ने आवेदन पुलिस में पहले दिया था, उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड निकल, ऐसा भी माननीय न्यायालय जब में जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा। मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के न्याय। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ब्लॉक सिंहेश्वर के ग्राम परसदा कला में भारत स्काउट्स ऑफ गाइड्स द्वारा 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर रैली का समापन फायर कैंप गीत से किया गया। शिविर में जिले भर से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग और महत्व बताते हुए बच्चों ने तंबू निर्माण, भोजन बनाना, विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रशिक्षण लिया। साथ ही उन्हें राज्यपाल से पुरस्कृत होने का योग्य बनाया गया है। 4 दिशाओं से 4 संदेश वहां आते हैं और मुख्य अतिथि महोदया के मैं समस्त अतिथियों से सादर निवेदन करूंगा। शिविर लगा है, इसमें हमें अनुशासन से रहना सिखाया गया है और हमारा मतलब कि बिहेवियर कैसे होना चाहिए। स्काउट गाइड में यहाँ रोअर एवं रेंजर का शिविर लगा है, 5 दिवसीय है। बहुत अनेक अच्छी चीज़ों को नोट किया और हमें इसके फाइल बनाकर राज्यपाल पुरस्कृत किया जा सकता है जी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि यहाँ पास टेंट लगाया गया है और हमें रहने की व्यवस्था भी यहाँ की अच्छी है और खाना पीना भी अच्छा है। यह एक जिला स्तरीय जो है कैंप है। यहाँ हमें टेंट सजावट एवं स्वयं से व आत्मनिर्भर बनाया जाने के लिए सिखाया जाता है। यह एक मतलब कि यहाँ दिनचर्या मतलब हमें दिनचर्या में ढलना भी सिखाया जाता है एवं यहाँ बीच बीच में रेस्ट भी दिया जाता है एवं स्वयं से ही बनाना सिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच ताखा में हुई संयुक्त रैली के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की उपाधि दी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। साथ ही मंच से चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोटे नेताजी की उपाधि दी। अरे 100 में 60 कौन दिलवाएगा।
मुफ्त में दवाई करवाएगा, कौन संविधान को बचाएगा, दे करके जाओ पतवार के, चले से जवाब है धरती को कि तब तक आवाज लेके आई है, धरती माँ सुन के हर साई है, यही मेरा देश को संदेश है। और नेता उत्तर प्रदेश के बलिया में पशुओं से भरी पिकअप ने भर्ती के लिए सड़क पर दौड़ लगा रहे युवक को मारी टक्कर, युवक बुरी तरह से घायल। युवक के घायल होने के उपरांत पिकअप पेड़ से टकराई। पिकअप के अंदर 1 दर्जन से अधिक गायों को क्रूरतापूर्वक लादा गया था। मौके पर एक गाय ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी और गायों को थाने पहुंचाया। मौका देख ड्राइवर फरार हो गया। मामला नरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी के पास का है। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। पंजाब विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के खालड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीती देर शाम खालड़ा पुलिस व बीएसएफ के संयुक्त अभियान में एक और ड्रोन को मार गिराया गया। इस अभियान के दौरान गांव तारा सिंह माड़ी कंबोके रोड के खेतों से एक ड्रोन बरामद किया गया जो जर्जर हालत में था। टूटे सामान को एकत्रित करना थाना खलड़ा लाया गया। खबर लिखे जाने तक ड्रोन के टूटे हिस्सों के अलावा कोई ड्रग्स या हथियार नहीं मिला था। गौरतलब है कि पाकिस्तानी तस्करों के हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन पंजाब पुलिस और बीएसएफ उनके हौसले बुलंद हैं और देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने गानों में हथियारों का प्रचार करने वाले पंजाबी गायक कुलजीत सिंह रजियाना के खिलाफ बागा पुराना पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिंगर कुलजीत सिंह ने 16 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक गाना पोस्ट किया है जिसे महाकाल कहा गया है और इसमें हथियारों की बात की गई है। सर एक मुलाजम ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੈਪਿਡ ਰੂਰਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ 3 FIR ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਜੇਕੇ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने शहर के विभिन्न होटलों और दुकानों में बाल श्रम करने वाले 5 नाबालिगों को पकड़ा है। उन निर्धारण के लिए उनका जिला अस्पताल में एक्सरे करवाने के बाद उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर को सौंप दिया गया। सुनील कुमार व दुष्यंत कुमार ने बताया कि सभी नाबालिग विभिन्न जगह में बाल श्रम कर रहे थे। उन्हें निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया है। अभिभावकों को बुलाया गया है। इनको स्कूल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक्सरे कराकर चाइल्ड केयर सेंटर भेजा है। उन्होंने बताया नाबालिगों से काम करवा रहे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं भारत आज और हरियाणा आज चैनल के आरंभ होने के अवसर पर इसके सभी संचालकों को, इसके साथ जुड़े हुए सभी कर्मियों को
मैं बधाई देता हूँ और उनकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए कामना करता हूँ। आज के समय में जो मीडिया है वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी है, जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। इससे बढ़कर पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा इसके संचालकों को बधाई देता हूँ और इनकी उन्नति की प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर DP जैन, बालाजी हॉस्पिटल, जींद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2022 7 दिन का प्रस्तावित सत्र दूसरे दिन ही हुआ स्थगित। सरकार ने 14 बिल बिना चर्चा के किए पास। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव रखा, जिन्हें सदन ने ध्वनि मत से किया पारित। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आज जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के ऊपर जो पत्थर खतरा बने हुए हैं तथा जिन स्थानों पर टर्न पॉइंट है उन पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद क्षेत्रांतर्गत पालाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर चूना व नमक का छिड़काव करना सुनिश्चित करें तथा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दैनिक कार्य प्रगति की रिपोर्ट ग्रुप में शेयर करें। उन्होंने RTO को निर्देश दिए कि वाहनों में ओवरलोडिंग न होने दिया जाए, जो वाहन की क्षमता है उसके अधीन अनुमति दी जाए। उसके साथ ARTO और संबंधित SDM के साथ वो पूरा ही रोड का विजिट करा देते हैं, जो भी हमारा NH का है। जहां जहां पर भी क्रैश वगैरह छूटे हैं, इन सभी लोग की ज्वाइंटली साइन कराएंगे उस पे, और इनको फिर हम जैसे आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा, इसके बाद इनको 1 महीने का समय देंगे इसको रिजॉल्व करने का NH पे, जिससे अभी बिकॉज हम लोग इससे बैठेंगे तो आपने इसे SDM कह रहे हैं कि बहुत जगह पर है, नंबर्स किसी को नहीं आइडिया, या कहाँ पे करना है वो हमें आइडिया नहीं। तो जो प्रायोरिटी एरियाज है उसमें ARTO हो जाएंगे, हमारे पुलिस ऑफिशियल हो जाएंगे, SDM वहां चले जाएंगे और साथ में NH का। तो SDM साहब डेट फिक्स कर दें और जिस दिन नहीं मैं डेट उत्तराखंड के किच्छा के उधम सिंह नगर में पुलबुट्टा पुलिस और एंटी ड्रग टास्क फोर्स की टीम को नशे के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। टीम ने पुलबुट्टा थाना क्षेत्र से 1.5 किलो अफीम के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं ने बताया कि वह झारखंड से अफीम की खेप लाकर ट्रांजिट कैंप निवासी डॉक्टर प्रताप यादव को बेचते थे। वह पिछले 8 से 10 सालों से डॉक्टर प्रताप यादव को अफीम की सप्लाई कर रही है। 30 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर प्रताप यादव को पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में जेल भेज दिया था। आज वह उसके बेटे अंकित यादव को अफीम की खेप देने आए थे। आरोपी ने अपना नाम आरती मिस्त्री निवासी झारखंड और आरती देवी निवासी बिहार सगी बहनें हैं। आज हमारा नशे के विरुद्ध जो हमारा जंग छिड़ा है, जिसमें पुलिस का लगातार अभियान चलता रहता है, हम कार्रवाई करते रहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है हमारे को। अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। आउटसाइड स्टेट से बिहार, झारखंड और बिहार से ये अफीम लाते थे। अफीम की तस्करों का हमने पकड़ दकड़ की कार्रवाई हुआ है। कुल मिला के हमें 2 बाहरी जनपद के शातिर अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है और लगभग 1.5 किलो अफीम जिसका मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है। तो ये कमर्शियल क्वांटिटी में भी बहुत ही भारी मात्रा में माना जाता है। भारी मात्रा की अफीम की बरामदी हुआ है। तो ये कार्रवाई जो है मुख्य रूप से ADTF और SOG की टीम करी थी। SOG का जो प्रभारी है वो आज इम्पोर्टेंट काम में कुछ और जगह लगा हुआ है, सेकंड इंचार्ज भी इम्पोर्टेंट काम में लगा हुआ है, इसलिए वो आज PC में शामिल नहीं हो पा रहे। हमारा ADTF टीम में हमारा भुवन जोशी है, विजेंद्र शाह है SOG प्रभारी, हमारा विनोद जोशी है ADTF प्रभारी, भुवन जोशी 2IC है SIG SOG का। इनकी और हमारे SOG की टीम की मेहनत से ये कार्रवाई हुआ है। कुल मिला के बहुत अच्छी कार्रवाई हुआ है। 1.5 किलो अफीम जिसका मार्केट वैल्यू 15 लाख है, इसका हमारा गिरफ्तारी और माल बरामद किया हुआ है। कुल मिला के 2 अभियुक्त हैं, आरती मिस्त्री मूल निवासी झारखंड के हैं और आरती देवी जो मूल निवासी बिहार से है। तो ये बिहार और झारखंड की 2 महिलाएं हैं जो तस्करी करके यहाँ पर भारी मात्रा में लाके यहाँ पे सप्लाई करते थे। उस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इनकी विस्तृत पूछताछ भी होगी
कि ये कहाँ से ला रहे थे, इसकी कसीदगी कहाँ से हो रही थी, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था। इसकी एक SOP के तहत पूछताछ होगी। तो एक अच्छी कार्रवाई हुई है, उसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार कार्रवाई करते रहें। और मेरी तरफ से पूर्ण टीम में जो जिसका मेन सुराग रशीद पता रशीद था, उसको मैन ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट करूँगा, क्योंकि कमर्शियल क्वान्टिटी का है। आपको नॉमिनेट करेंगे और 10,000 रुपये कैश रिवॉर्ड है पूर्ण टीम को, संपूर्ण टीम को कैश रिवॉर्ड है। सर क्या इनके हरियाणा सरकार ने MBBS बॉन्ड मामले में कई अहम बदलाव किए हैं। यह सभी बदलाव MBBS छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर उनके साथ बातचीत के बाद किए गए हैं। नए बदलावों के बाद सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा घटाकर 5 वर्ष कर दी है। यूपी के औरैया जिले से बड़ी खबर है। यहाँ औरैया कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने बैंकों के ATM से छेड़खानी कर लाखों रुपए की बैंक को चपर लगाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 109 ATM विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं। साथ ही 3 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। SP चारू निगम ने औरैया कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया है कि यह गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था, जिसकी सूचना पुलिस को मिल रही थी। निर्देशन पर SOG और पुलिस टीम ने सक्रियता से इस गिरोह के 3 सदस्यों को फफूंद रोड से गिरफ्तार किया है। जनपद औरैया और इसके आसपास कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ATM से कुछ छेड़छाड़ करने वाला एक गैंग घूम रहा है। तो इसमें इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कई सारे खाते खुलवाकर उनके ATMs ले जा रहे हैं। तो कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर कि आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके बैंक के ATM जो है बनवा कर ये लोग ले लेते थे। और उसके बाद उनका जिस फ़ोन से उस बैंक में कनेक्शन होता था वो फ़ोन का सिम भी ये लोग ले लेते थे। और किसी SBI का एक पर्टिकुलर टाइप का एक ATM है जिसमें ये अगर 10,000 रुपये का लिमिट है, उसको निकालते टाइम उसको छेड़छाड़ करते हैं तो वो फेल ट्रांजैक्शन के रूप में प्रदर्शित होती है और फिर उसको ऑनलाइन क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार से अगर 10,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए तो 10,000 रुपये बैंक से भी क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार कई 109 ATM एक ATM रूम के नाम पे इन्होंने कमरा किराए पे लेकर वहाँ रखा हुआ था। उसका पूरा वही खाता बना रखा है कि इससे इतने इतने पैसे निकाले इस दिन पे, इसमें क्लेम कर दिया कि नहीं किया। इन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। उसमें बैंक्स को जो जो कंप्लेंट्स करी हैं उन कंप्लेंट के मैसेजेस हैं कि जो फेल ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्लेम के लिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। तो इस प्रकार बैंक के साथ छेड़छाड़ करके, ATM के साथ छेड़छाड़ करके बैंकों से गलत तरीके से पैसे वसूलते रहे हैं। कुछ मोबाइल्स का भी समीक्षा की जा चुकी है। शेष इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। एक फ़ोन के ट्रांजैक्शन देखे गए तो 6 महीने में कुल 37 लाख के ट्रांजैक्शन फ्रॉड की कंप्लेंट से लोग कर चुके हैं। किसी भी एक खाते में लगभग 2-3 बार ट्रांजैक्शन बैंक वापस कर देता है पैसा, उसके बाद एक फ्रॉड अलर्ट हो जाता है तो बंद कर देते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके अलावा भी कई खातों के ATM इनके द्वारा बनवाए गए और उसके बाद उनको तोड़ के फेंक दिया जब बैंक्स ने पैसा देना बंद कर दिया। इसमें मोस्टली HDFC के, एक्सिस बैंक के और इस टाइप के खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। ये सीधे के सीधे अप्लाई करते हैं और इंस्टेंट इनको जो कार्ड मिल जाते हैं वो अपने दोस्तों के, उनके परिवारीजनों को बहला फुसला के लोग बनवा लेते हैं और उपयोग करते हैं। यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, देश में अनिश्चितता का माहौल है, इमरजेंसी से भी बदतर हालत हो गई है। KC त्यागी ने सपा कार्यालय पर प्रेस के सामने शिवपाल यादव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 4 दिन पहले शिवपाल सिंह बीजेपी के लिए उस समय सही थे जब वह अपने परिवार से अलग होकर सपा के खिलाफ बगावत कर रहे थे। आज परिवार में शामिल होने पर शिवपाल सिंह यादव 4 दिन में ही खराब हो गए और भाजपा के दुश्मन बन बैठे, जिसके चलते उनकी सुरक्षा हटाई गई है। कि गवर्नर मुख्यमंत्री की बात मानने से मैंने कर दी। एक उदाहरण मुझे आप बताइए, क्या ऐसा दल बदल कभी हुआ है? अब मैं गया था वहाँ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए शिमला में, वहाँ एज ऑन टुडे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेसियों को भी ये भरोसा नहीं है कि हमारे कौन कौन वहाँ चले जाएंगे। ऐसी अनिश्चितता का माहौल देश में कभी नहीं था। मोदी जी राज कर रहे, करते रहे, लेकिन संस्थाओं का अपहरण ना करें, संस्थाओं पर अटैक ना करें। ये हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में उसके बाद, और इसमें सभी थे।
आपकी जानकारी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे इसमें। 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल बना है उसमें हिंदू महासभा के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस पार्टी को और जवाहरलाल को, गांधी को देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि विचारों की भिन्नता के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें? या वही लोग राष्ट्र निर्माण वाले हैं जो शासक दल के साथ हैं, या जो आपसे असहमति रखते हैं वो अराष्ट्रीय हो गए? ऐसा कभी नहीं था। जवाहरलाल जी थे, उनसे हमारे नेताओं के मतभेद थे। इंदिरा जी के हम कई 2-2.5 साल तो हमें हमारे जैसा छोटा वर्कर जेल में रहा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा। लिहाजा वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है कि जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, जिसकी बुनियाद रखी गई है मैनपुरी में, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन चुनाव के बाद ये भी और इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद हम इस मुहिम को और तेज करेंगे और सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से एक निश्चित कार्यक्रम के तहत खाली मोदी हटाओ नहीं, मोदी को क्यों हटाओ या बीजेपी को क्यों हराओ, इसको लेकर के कार्यक्रम बनाएंगे। आपने इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपसे सॉरी कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्या विपक्षी दल के नेता और भी उपचुनाव में प्रचार के लिए आएंगे? नहीं, कोई विरोध करने तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब दे दूं पूरा। सर, चुनावों में जो आजकल देखने को मिल रहा है कि जुबानी जंग शुरू हो गई है, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी कहने से खतरा नहीं रहा। कैसे लेते हैं इसको? जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे कि बाबा जी ने कहा, जैसे बाबा जी ने शिवपाल सिंह जी को बताया पेंडुलम, तो शिवपाल सिंह जी ने यहाँ के प्रत्याशी रघुराज सिंह खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत आज।